Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Sadaf Batul, President-elect at the Rotary Club, University of Agriculture, Faisalabad, Rotary International District 3272. I cordially welcome you all in the 8th session of the scholarship series. And for today's session, we have a very eminent speaker with us, Mr. Muhammad Naman Tahir. He is currently pursuing his master's in software engineering mobile app development from University of Malaysia, and he will brief you about diploma, graduation, master's, and PhD admissions procedures in different universities of Malaysia. Over to you, sir. Yeah, assalamu alaikum to everyone. Wa alaikum assalam. Hello. Jiri, wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Everyone is fine and doing great. So just a moment, give me a moment. Thank you so much, Hamza, and thank you so much everyone for waiting. I'm really sorry for that. First of all, maybe just because of like I was busy in some of my things up here, so that's why I just do it this quickly. So I'm not taking you too much time. I will make it short and quick and smart information delivery, so everyone will understood it easily. So अगर आपको बीच में कोई भी question होगा, I will deliver all the information first. And if you have any question, then you can ask me after I deliver all the information. So first of all, my name is Muhammad Naman Tahir. I'm from basically I'm from Pakistan. My family migrated here since 2006. We are staying in here. I did my bachelor's in Pakistan, then I moved in here. So basically कंपनी मेरी जो है वो यहाँ पे मेरे वालिद साहब यहाँ पे बहुत पुराने और मतलब वेल नाउन पाकिस्तानी बिजनेसमैन है. बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि ये these things are actually linked to your scholarships. ये ऐसे कि जैसे मेरी जो कंपनी है वो थोड़ी सी ना वेल रिप्यूटेड और वेल नाउन है. तो इसमें होता ये है कि जब आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू बिजनेस, तो सम ऑफ लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट्स लाइक यूनिवर्सिटीज हो गई, कॉलेजेस हो गए, या लाइक इस तरह की जो एजुकेशन सिस्टम है, ये उस कंपनी के थ्रू जो है वो उस कंट्री के जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं कि जो कि हैं आप यहाँ पे आके उसे अवेल कर सकें. सो can I have next slide? Sorry. So this is my information. As you know, this is my skills and what I learned from Malaysia. But the thing I'm actually telling you, these things I learned from Malaysia. That's why I am like telling you this. मैं यहाँ पे आया, मैंने ये चीजें सीखी मलेशिया से. पाकिस्तान में टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा अपनी कंट्री को ये नहीं करना चाहता. आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज गुड, बट उस पे फिजिकली जो थिंग्स हैं वो अगर आप देखें दैट आर नॉट सो लाइक अट्रैक्टिव. उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो वही पुराना वाला अभी तक चलता आ रहा है कि लाइक बुक रीडिंग एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दैट्स व्हाई आई प्लान टू कम ओवर हियर. सो नेक्स्ट थिंग. ओके, सो मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्विक इंफॉर्मेशन दूंगा. हमें आपको जो है वो मलेशिया में जो है वो आना क्यों है. सो उसमें मैं आपको बताऊंगा. पहली चीज तो हमें ये है, तो एक तो जो मलेशिया है वो बाकी कंट्रीज से जो है वो बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत क्विक प्रोसेस है. और इसमें जो है बाकी कंट्रीज लाइक एज यू कैन कंसीडर यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दीज कंट्रीज, इसमें जो है वो टू बी ऑनेस्ट इसमें फ्रॉडुलेंट के चांसेस हैं. मलेशिया में फ्रॉडुलेंट के चांसेस इसलिए नहीं है बिकॉज योर ऑल द एडमिशन प्रोसेस इज अंडर the government website. If once you plan to come to study in Malaysia, so they will give you the portal which one is linked to your passport number.
Okay, so whenever you want to like track your application, so what you are doing, you just simply have to open the website, which is called EMGS. You just have to open the website. You just have to put your passport number, and you can anytime you can track your application in which part your admission is at the moment. Like अगर आप उसमें परसेंटेज से जो है वो आपको दिया जाता है, और 20% पे वो मतलब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, उससे जो है वो आपका जो है वो लाइक स्टेप वाइज जो है वो आगे जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इसमें सबसे मेन जो चीज है, इसमें हमें मलेशिया के लिए आइल्स और टॉफल या कोई भी जो इस तरह के टेस्ट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, बेसिकली हमें वो जो है वो नहीं देने पड़ते. एक तो फर्स्ट थिंग आपकी कॉस्ट सेविंग ये हो गई कि आपको जो आई थिंक अराउंड 45 to 50,000 जो है रुपीज आई थिंक वो आपका सेव हो गया, जो आपको जो आइल्स के लिए दूसरी कंट्रीज के लिए देना पड़ता है वो आपको यहाँ पे नहीं देना पड़ता. बट the main thing is you must have to study in English medium schools. As you know, like mostly of the schools in Pakistan is I think already English mediums. So I think ये तो इतनी मुश्किल प्रोसेस नहीं है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए. वैसे भी माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वैसे ही वोकैबुलरी में बहुत हाई जा रहे हैं. तो दूसरी बात ये, इंग्लिश इसीलिए वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आइल्स और टॉफल के लिए नहीं कहते क्योंकि आवर पाकिस्तानी वोकैबुलरी इंग्लिश skills are better than like Middle East countries. So that's why they don't need IELTS. बस उनको सिर्फ एक लेटर चाहिए आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, जो कि आपको लाइक हाईलाइट कर रहा हो कि आपने जो भी आपकी लाइक प्रीवियस स्टडीज है वो इन इंग्लिश है. ओके, next thing. As I told you that it's a very easy and quick process. Like you just have to plan in which university and which which university you want to get admission in, and then you just have to just have little effort. You just have to take your little like you have to make the arrangements for your passport, your documentation, and all these things. Once you submitted the documents and all these things, so just I think as I know until now I got many I bring many students in here in Malaysia. It's been almost I think if I say maximum days is 60 and minimum days is 40 to 60 working days. You can वहां से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से लेके यहाँ मलेशिया पहुंचने तक ये टोटल प्रोसेस जो है ये आई थिंक 40 से 60 वर्किंग डेज का है. Not like Canada, not like Australia, not like UK that you have to wait until 1 year, you have to wait until 6 months, you have to wait for the approval letters and all these things. No need to wait that much. Okay, the next thing. And the next thing is वन मैं आपको एक बहुत जो है वो अच्छी चीज बताऊंगा. जो मलेशिया है वो हमें एक वर्ल्ड क्लास जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आप कहीं भी इनका इफ आई से ओपनली यहाँ के जो लाइक जो इनका कल्चर है या आप कल्चर कह लें, ये बहुत ही पोलाइट नेचर लोग हैं, बहुत ही पोलाइट नेचर लोग हैं. दैट्स व्हाई वर्ल्ड वाइड लोग जो हैं वो इनको जो है वो यहाँ से पढ़े हुए, इनका कल्चर अडॉप्ट किए हुए लोग या यहाँ के जो लोकल हैं या जो भी हैं वो उनको बहुत ज्यादा जो है वो अपनी कंट्री में वेलकम करते हैं और बहुत इजीली इनका जो है वो अपने जो है वो कंट्री में इनको अलाउ करते हैं आना, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर वेरी पोलाइट नेचर दे आर. मतलब कि दूसरी बात ये कि आप अगर इधर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको ड्यूअल डिग्रीज जो है वो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं, लाइक यूके and Canada and some of New Zealand universities. So उसमें ऐसे है कि आपको सिर्फ जो है वो यूनिवर्सिटी की जो है वो सिलेक्शन वो आपको जो है वो ठीक तरीके से करनी होती है. That thing I can guide you the further at the moment with the time being. And उसमें जो क्रेडिट ट्रांसफर है वो भी इस मलेशिया कंट्री से, लाइक हम अगर पाकिस्तान से अप्लाई करें आज ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के लिए, आई थिंक जहां तक मेरी लाइक वर्किंग है, आई थिंक 40 to 50% चांसेस होते हैं वो रिजेक्शन के. लाइक बट इफ यू आर स्टडी इन हियर इन मलेशिया, आई थिंक यू आर एक्सेप्ट
अपनी एजुकेशन सिस्टम को आजकल जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रूव कर रही हैं। ये बेसिकली ये कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है, इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड रैंकिंग में जो है वो इंक्लूड होना शुरू हो चुकी हुई है। तो इसीलिए जो है ये इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे स्टडी करें। लाइक दे वांट टू बिकम लाइक ऑस्ट्रेलिया, बट they cannot do it so fast, but they like initially they took a step already to interact international students to boost like their economy or their education system or whatever the thing. Before that, if yeah, next slide. ओके, ये लाइक ये कंपैरिजन है बिफोर जो लाइक आई थिंक इफ व्हेन आई स्टार्टेड स्टडी इन हियर, आई थिंक ये जो इनका एजुकेशन जो डिपार्टमेंट का जो इनका कोटा होता है वो पहले इतना नहीं था। उन्होंने इसको इंक्रीज बहुत ज्यादा कर चुके हैं। आई थिंक मोर देन 50% ये उसको इंक्रीज कर चुके हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज टू इंटरेक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये सिर्फ जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये कर रहे हैं। मतलब लाइक इफ यू कैन से दैट ये अपने वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं। वो लाइक इतना वो जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में जो है, अगर आप सिर्फ वो उनको लोकल यूनिवर्सिटीज को, लोकल स्टूडेंट्स को, लोकल पीपल को वो इंटरेक्ट करेंगे तो वो अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को लाइक जो है वो ग्रो नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो ये पैसे लाइक जो है वो कोटा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। And the next thing is it's about the living expenses. If you consider Canada, Australia, UK, the most highest expenses I think country is Australia. This one's so expensive. अगर आप वहां से स्टूडेंट जाते हैं तो वहां के आपको सबसे पहले तो आपको बजटिंग करनी होती है पाकिस्तान से सबसे पहले माइंडसेट बनाने के लिए कि हम जिस कंट्री जा रहे हैं हमारे वहां पे क्या एक्सपेंसेस होंगे। हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे हमने अगर फीस सबमिट करवानी है, उसका जो है वो ट्रांसफर रेट क्या है, उसका करेंसी एक्सचेंज क्या है, उसका जो है अगर इन केस अगर ऑस्ट्रेलिया का डॉलर जो है वो एक्सपेंसिव है। सो इफ यू कैन कंसीडर मलेशिया का जो रिंगिट, इट्स कॉल्ड रिंगिट जो है वो लोएस्ट देन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सो इसलिए एक तो इस लिहाज से वो जो है वो लेस हो जाती है, पैसे कम हो जाते हैं कनाडा से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, यूएसए से भी, यूके से भी, न्यूजीलैंड से भी, बिकॉज उन कंट्रीज का आई थिंक डॉलर रेट जो आई थिंक इट्स मोर देन 100 एंड आई थिंक इफ वी कंसीडर टुडेज रेट, आई थिंक जो टुडे रेट है रिंगिट का आई थिंक 60 या 62 के अराउंड अबाउट होगा। इसीलिए आप अगर कैलकुलेशन करें, इन केस जस्ट इन एग्जांपल अगर आपकी फीस $1000 है, $1000 जो है वो आप कनाडा का $1000 जो है वो कितना आपको पड़ रहा है पाकिस्तानी, और अगर 1000 रिंगिट जो है वो मलेशियन है वो आपको कितना जो है वो डिफरेंस पड़ रहा है आपकी। एक तो उस लिहाज से आपकी जो है वो कॉस्ट जो है वो कम हो गई है। दूसरी बात ये कि इसमें आपका जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस, ऑस्ट्रेलिया में आपको वीकली पे करने पड़ते हैं, कनाडा में आपको मंथली पे करने पड़ते हैं, विच वन इज bit higher than Malaysia, which is bit higher than Malaysia. वो ऐसे कि अगर आप यहाँ पे लाइक मेरे काफी ज्यादा जो है वो लाइक दोस्त भी हैं, फैमिली भी हैं, आपकी भी फैमिलीज भी होंगी, फ्रेंड्स भी होंगे who they are studying in Australia, Canada, UK or these countries. If I consider it like अगर कैलकुलेशन निकाले पाकिस्तानी रुपीज में तो इनके एक्सपेंसेस बहुत हद तक बाकी कंट्रीज से बहुत हद तक चीपर है, बहुत ज्यादा हद तक चीपर है। लाइक अभी तक जो मेरे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अभी तक स्कॉलरशिप्स पे आए हैं, उनमें से किसी एक की मुझे ये कंप्लेन नहीं आई है कि यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस आर सो हाई। नन ऑफ देम दे कंप्लेन मी अबाउट लिविंग एक्सपेंसेस, food expenses, traveling expenses. They didn't complain me about these things. This is the major thing is to migrate in Malaysia. As you can see, the chat is near. If you are single, if you are a car owner, if you are married, but ये अभी भी कुछ अगर आप ये जो single person का आप यहाँ पे देख रहे हैं 1870 ringgit, it's a bit like lower than other countries.
अगर आप 1800 वहां पे 1800 रिंगिट जो है वो आप पाकिस्तानी करेंसी में जो है वो कन्वर्ट करें, तो आई थिंक इट्स अ बिट चीपर देन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज. सो एंड सम मोर थिंग, इट्स ये जो कैलकुलेशन दी हुई है ये आपको बिल्कुल इंडिपेंडेंट लिविंग एक्सपेंसेस है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट अगर आप लेना पसंद करते हैं तो ये सिर्फ उसके लिए है. सो द थिंग इज, ये आपको साथ जो है वो चार्ट वो स्टेट्स का भी दिया होगा. बेसिकली जो है वो जो मेरी जिस यूनिवर्सिटीज ने मुझे स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर्स की हुई हैं, वो दे आर बेसिकली बिलोंग्स टू सेलांगोर. Which one is on 12 number? That one is on Selangor, and the 15th one Kuala Lumpur. That they in these two states, I'm having scholarship for Pakistani students. So if you are like, you can see that Kuala Lumpur is a bit higher. So then you can have opportunity for Selangor as well. Selangor University is also a good reputed 5-star ranking university. Whom they are offering the scholarship. So the next thing. Okay, this is the main thing I'm gonna tell you, that to be honest, I don't want to scam you like other agents or other people, that you come here, you will do job and you do the thing and you will earn that much money and you will build your car in Pakistan, you can build that thing in Pakistan. It's a totally lie. To be honest, if you are so lucky if you got a job in here during your study period. You are so lucky you are if you got admission in here during your study time period, because the government, they don't allow you to work in here for on study visa. If you agar aap part time study kar rahe hain, then you have to take the letter from immigration that you can work part time, but only part time. Full time you cannot do work in here during your study period. अब जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो पहली बात ही ये करते हैं, वो जॉब का पूछते हैं. जॉब बेसिकली जो है वो आप फ्रीलांसिंग पे, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हाउ मच डू यू वांट टू अर्न, यू कैन अर्न, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल इन फ्रीलांसिंग. इफ जो यहाँ पे मलेशियन लोकल्स हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो बहुत ज्यादा कम्युनिटी है वो चाइनीज की है. यहाँ पे चाइनीज हैं, चाइनीज जो है वो, और जो मलेशियंस लोकल पीपल, वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग योर स्टडी एग्जाम बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो आपको जो है वो जॉब ऑफर कर सकें, बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट someone will ask them that you're employed, he or she is in the student visa, and how you can hire them in professional way. So इसीलिए वो थोड़ा सा जो है वो करते हैं. वो आप लकी हैं, ऐसा नहीं है कि like बिल्कुल नहीं देते, 100% नहीं है कि 100% नहीं देंगे. some cases they allow you to work. यूनिवर्सिटी में आप जॉब ले सकते हैं. यूनिवर्सिटी में आप उनको बात करें, आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपकी डिग्री से रिलेटेड, you can ask them to work inside the university, because then they are the responsible for the things. अगर 80% चांसेस हैं कि यहाँ पे जो जॉब है वो यहाँ पे नहीं मिलती है स्टूडेंट्स को. 20% you are the lucky if you got some like job opportunity in here. काफी foreigner investors यहाँ पे होते हैं, like अरब्स हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, चाइनीज नहीं, ये लोग जो हैं ये आपको जॉब ऑफर कर देते हैं, because they know how to handle the things. If someone comes here, they know how to tackle the government and all these things. They tackle the issues if from facing from the employee they hire. वो काफी हद तक जो है वो आपको जो है वो लेवरेज दे देते हैं, वो आपको जॉब दे देते हैं. लेकिन जो लोकल पीपल हैं, जो मले हैं, वो चाइनीज हैं, वो डरते हैं, वो शायद इसीलिए जॉब नहीं देते हैं. तो भी ऑनेस्ट मेरे भी हैं. मैं भी अगर अपना कंसीडर करूं, मैं आज जाके अप्लाई करूंगा तो
आई थिंक 80% जो है वो मुझे रिजेक्शंस होंगी, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे लोग आते ही इसीलिए अपनी स्टडी जो है वो मतलब चीपर वे में अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो डिग्री कंप्लीट करने के लिए, ताकि उनको यहाँ से आगे जाना इजी हो जाए। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, यूके जाना है, यूएसए जाना है, जर्मनी जाना है, जहां भी जाना है उनको यहाँ से जाना इजी हो जाता है। एक्सेप्टेंस जो है वो यहाँ से आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री इन हियर उनके लिए एक्सेप्टेंस जो है वो इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है वो इजी हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, भाई आप वहां जाके खुश हैं कि नहीं? सॉरी, मैंने कहा आप वहां जाके खुश हैं कि नहीं? नाउ यू कैन हियर मी? क्वेश्चन आंसर जो है ना, जी मैंने कहा Earns there are not never a single penny from Pakistan. Everything we earn, everything we are in here just on because of Malaysia, because मलेशिया ने हमें दिया जो भी दिया, इसीलिए मैं नहीं कहूंगा कि मैं खुश नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे फादर, मेरी फैमिली सारी यहाँ पे रहती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश हैं, just because hello, yes, yes, sir. yeah, can you hear me now? Yes, can. तो आई थिंक बीच में आई डोंट नो ऑटोमेटिकली म्यूट हुए जा रहा है। जो भी मिला है हमने, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो जितना खाया है, जितना कमाया है, जो भी अर्न किया है पाकिस्तान में, जो भी बनाया है, यहाँ जो भी बनाया है, वो मलेशिया में रहकर मलेशिया से कमा के बनाया है। पाकिस्तान से एक सिंगल रुपीस भी यहाँ हम नहीं लाए हैं कि जिसमें जो है वो हम कहें कि हम खुश नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी एनफ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो भी दिया मलेशिया ने दिया, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं खुश नहीं हूँ। Next thing, I already told you about these things, that job कि यहाँ पे जॉब जो है बेसिकली किस तरह मिलती है आपको आफ्टर। मैं एक चीज एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा। जब आप यहाँ की एजुकेशन सिस्टम इनका इस तरह है कि जब आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स या जो भी डिग्री आप कंप्लीट करते हैं, इनका यहाँ पे मस्ट रूल है, इन्होंने आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मस्ट जो है वो आपको देनी है, जो कि आप जो है वो आपकी डिग्री का हिस्सा होता है। वो अगर उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने अपनी एफर्ट्स शो की हुई हैं, यू आर डूइंग ग्रेट इन द इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, आई थिंक आपके 90 to 95% चांसेस होते हैं जहां पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो डिग्री वो आपको ऑलरेडी जो है वो आपको जज कर लेते हैं कि यू आर एबल टू वर्क इन हियर, वो आप उनके काम के हैं या नहीं है। वो आपको उसी टाइम जज करके जो है वो यूनिवर्सिटी को या आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि एंड ऑफ द डिग्री यू कैन कम हियर, यू कैन ज्वाइन अस। They offer you the visa, they offer you the stipend, they offer you the good salary according to the government rules, that the basic salary of the master student is starting from I think 6,000 ringgit, which is 6,000 ringgit, which is basic salary starting the master's level of student. If you are a diploma student, your salary after the diploma completion, it's more than 2,000. If you are the graduation, if you did graduation, then your average basic salary is more than I think 4,000. And like this, they are categorize the things in here in Malaysia. तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी को भूखा नहीं मारते हैं, ये किसी को ऐसे नहीं मारते हैं। तो ये आपको जो है एट द डिग्री एंड आपकी वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जो है वो आपको कर लेते होते हैं। मेरे काफी ज्यादा यहाँ पे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं, अभी उनकी ग्रेजुएशन चल रही है। आई थिंक सेकेंड लास्ट यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको लास्ट सेमेस्टर के बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देते हैं। सम यूनिवर्सिटीज ऑफर्ड यू आई थिंक बिफोर सेकेंड लास्ट सेमेस्टर। तो आई थिंक
आई थिंक मेरा जहां तक ख्याल है अभी तक मैंने जिनसे भी मिलता हूँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, उनको आई थिंक सबको जो है वो सबके मतलब के जुबान से यही सुना है कि हमें उन्होंने ऑफर किया है, बट कुछ होता है कि कभी वो स्टूडेंट जो है वो उनको जॉब नहीं पसंद आती है, वो उनको इंडस्ट्री पसंद नहीं आती है, तो वो कहते हैं कि हम नहीं करना चाह रहे, या कई बार होता है कि अगर आप खुद आप एबल नहीं है कि आप उनको वर्क दे रहे हैं, क्योंकि बिकॉज कंपनी को तो काम चाहिए है, अगर आप उनको काम दे रहे हैं 100% दे रहे हैं, then it's 100% sure that they will allow you to work after your completion your degree. So ये आपने जो है वो उस बारे में जो है वो परेशानी यहाँ पे नहीं होती है कि डिग्री कंप्लीशन के बाद ये लोग जॉब नहीं देंगे, बिकॉज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ही वो आपको जो है वो जॉब ऑफर कर देते हैं। नो मैटर्स कौन सी वो कंपनी है, कौन सी वो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं है, उनको सिर्फ आपकी एफर्ट्स से जो है वो मतलब होता है कि आप कितनी एफर्ट्स कर रहे हैं। ओके दोस्त, उससे अगली चीज है स्कॉलरशिप्स के बारे में। अगर आपको मैं थोड़ा सा ओपनली बताऊं तो सॉरी, स्कॉलरशिप्स के बारे में अगर आपको मैं ओपनली बताऊं, these are not the fully funded scholarships, these are not the fully funded scholarships, these are the scholarship based on your academic like you are good in merits, if you have good आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका जो है वो ग्रेड्स अच्छे हैं इन मैट्रिक, इन इंटरमीडिएट, इन बैचलर्स, in masters, if you had a good grade, then you can apply for the more than 70% scholarships. अभी तक मेरे पास जो ऑफर हुई हैं वो some universities ने 70% scholarships तक जो है वो वेवियर दिया हुआ है कि 70% scholarships जो है वो हम आपको जो है वो ऑफर करेंगे। वो जो है इसमें होता ये है कि इसमें आपको जो आपकी ट्यूशन फी है इसमें आपको जो है वो 70% तक जो है वो आपको वेवियर देते हैं। बाकी जो आपके चार्जेस होते हैं, these are your admission charges, these are your like visa charges and all these things, this you must have to pay them, they waive off only scholarships, they are giving only like 70%, up to 70% scholarships on tuition, on your in your tuition fee. इसमें ये है कि अगर आप उसमें कंपैरिजन करें, फिर भी अगर आप कंपैरिजन करें अदर यूनिवर्सिटीज और मलेशियन यूनिवर्सिटीज, दे आर चीपर देन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, दे आर वे चीपर देन लाइक दीज कंट्रीज। और उसके ऊपर भी दूसरी बात अच्छी ये है कि इनका करेंसी जो है वो उन कंट्रीज से डिफरेंट है, ये 60 है तो वो मोर देन 100 है, दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये कि उसमें जो है वो आपको जो है वो आई थिंक वो यूनिवर्सिटीज भी आपको 100% नहीं देती हैं, और इनकी ऑलरेडी लोअर फीस है, उसके ऊपर भी वो जो है वो आपको स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। वो बेसिकली कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि इनको अपनी जो एजुकेशन लेवल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। उसके लिए जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपको स्कॉलरशिप्स दे के या इस तरह के जो मतलब क्या है अपॉर्चुनिटीज दे के आपको जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें जो है वो क्लियर सी चीज है जिसमें आप नॉट ऑल यूनिवर्सिटीज आई थिंक मेरे पास अभी तक जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 6 से 7 यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ऑफर की है यूनिवर्सिटीज, क्योंकि उन्होंने जब मुझे लिंक किया था, आई ऑलरेडी शो देम द स्टेटस इन हियर, so how many students already we have in here Pakistani community. So उस बेस पे उन्होंने जो है वो हर यूनिवर्सिटी ने अपने लिहाज से जो है वो ऑफर कर दी कि हम जो है वो आपको 70% तक दे सकते हैं, हम जो है वो आपको 50% तक दे सकते हैं। मेडिकल की यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें दे आर गुड इन लाइक sorry, they are good in accounts. This country is good in chartered accounting and जो है आपका marketing, MBA, BBA और इस तरह के जो डिग्रीज हैं उसमें ये बहुत जो है वो अभी इसको ग्रूम कर रहे हैं। लोग जो है वो इसके लिए आते हैं। अगर आप अप्लाई करें, अगर आप कंपैरिजन करें कि अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं
आई थिंक इनिशियल पेमेंट से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। इनिशियल पेमेंट में यहाँ पे होता ये है कि आपको इनिशियल पेमेंट जो है ये पाकिस्तानी मतलब इट डिपेंड्स ऑन वेरिएशन ऑफ करेंसी, पर आज की करेंसी की इवैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताऊं, it will I think it will cost you to reach in here including your first visa. It costs you around I think 2 to 2.5 lakh rupees. 2 से 2.5 लाख रुपया आपका जो है लगता है आपकी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, जिसमें जो है वो 2-2.5 लाख जो है वो आपका कोई जो है वो आपका एजेंट नहीं लेगा, कोई आपका जो है वो बंदा और नहीं लेगा, कोई प्राइवेट बंदे को आपने नहीं देना है, सीधा जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होता है। वो जिस दिन आप फीस सबमिट करवाएंगे वो जो है वो आपको फौरन जो है वो एक पोर्टल, आई थिंक 1 वीक की इवैल्यूएशन पे आपको एक पोर्टल वो गवर्नमेंट वाला विच आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, वो आपको एक पोर्टल बना के देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, जहां पे आप कभी भी जो है वो अपना पासपोर्ट नंबर जो है वो की इन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं कि ऑलरेडी स्टार्टेड एंड वेयर योर एप्लीकेशन प्रोसेस इज एट द मोमेंट। आपको यहाँ पहुंचने तक अदर देन टिकट, सिर्फ टिकट इसमें टिकट इंक्लूड नहीं है, अदर देन टिकट आपको यहाँ पहुंचने तक आपको जो है वो आई थिंक 2.5 विच कॉस्ट यू अराउंड 3,500 to 4,000 रिंगिट्स। 3,500 रिंगिट से 4,000 रिंगिट के दरमियान जो है पेमेंट आपको करनी पड़ती है, जो कि अराउंड अगर आप करेंसी की मतलब के अप एंड डाउन देखें तो आई थिंक आपको 2 से 2.5 लाख के दरमियान कॉस्ट करेगा आपको यहाँ पे पहुंचना। यहाँ पे पहुंचना आपको 2-2.5 लाख कॉस्ट करेगा। उसके बाद होता है कि आपको जो फर्स्ट वीक होता है आफ्टर अराइवल ऑफ फर्स्ट वीक, जो भी आपकी जो है वो स्कॉलरशिप्स के बाद जो भी आपकी स्कॉलरशिप के बाद आपकी फी बनी होगी वो आपको जो है वो फर्स्ट वीक में यहाँ आप आके पे करनी होगी। आपको कोई फ्रॉडुलेंट नहीं करेगा कि भाई आप फीस दो यूनिवर्सिटी की फीस दो, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा। आपने सिर्फ 2-2.5 लाख देना है, वो यूनिवर्सिटी को पे करना है, यूनिवर्सिटी के पर्सनल बैंक अकाउंट्स पे जो है वो आपने ट्रांसफर करना है, वहां से आपका वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आई टोल्ड यू दैट 40 to 60 वर्किंग डेज में आप यहाँ ट्रेवल कर लेंगे, आपका 70% जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। 70% प्रोसेस कंप्लीशन में होता यह है कि 70% जब तक हो जाता है आपका, तब आप ट्रेवल कर सकते हैं। वंस यू ट्रेवल्ड इन हियर, आपको फर्स्ट वीक में जो है आफ्टर स्कॉलरशिप जो भी आपकी फी जो है वो उनके साथ डिफाइंड हुई होगी। फर्स्ट वीक में आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, नॉट ऑल ईयर फी, आई एम क्लियर, लेट मी क्लियर यू द थिंग, आपने सारी फीस नहीं पे करनी है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की आफ्टर स्कॉलरशिप जो फी होगी, जो भी उनकी कैलकुलेशन आपको देंगे। आफ्टर अराइवल यू हैव टू गो, यू वांट टू विजिट योर यूनिवर्सिटी वेयर यू गॉट एडमिशन, यू वांट टू गो, यू वांट टू विजिट, यू वांट टू contact with your dean, you want to contact with anyone, you can go and you can visit or do want to whatever you want to go after this you can do. There is no restriction that आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं है, ये बात नहीं है। आप कुछ भी जो है वो जाके चेक कर सकते हैं, वो आफ्टर इवैल्यूएशन आप उनको फीस दें। फर्स्ट वीक जो है वो आपको फी देने के बाद जो है वो आपका पासपोर्ट रीसबमिट होगा। पासपोर्ट रीसबमिट होने के बाद आपका 1 साल का जो है वो वीजा जो है वो आपको जो है वो कंपनी कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जो है वो आपको लगा के देगी। यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे गवर्नमेंट प्रोसेस होगा अगेन, which is I think around 10 to 15 डेज का प्रोसेस होता है, जिसमें आपका वो पासपोर्ट दोबारा सबमिट होता है, उस पे 1 साल का जो है आपका वीजा लग के वापस आता है, और उसके बाद जो है वो आपकी आपका यहाँ का एक आईसी होता है, जैसे हमारा पाकिस्तान का आईसी है, यहाँ पे एक आईसी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि आप जो है यहाँ पे लीगल है। वो आईसी आपको जो है वो दे देते हैं। वो आईसी आपको मिलने के बाद आप पे वन ईयर यहाँ पे आप लीगल है, जहाँ पे आप जो है वो अपने बिहाफ पे आप कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। यू वांट टू रजिस्टर अ कंपनी ओवर हियर, यू कैन इजीली, यू कैन अगर आपने अपने एक्सपेंसेस को निकालने हैं, पीछे से नहीं मंगवाने, वो आप बिजनेस करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। जॉब जो है वो बहुत रेयर ऑप्शन है। ओके, these are the all complete process इन जो कि मैंने आपको बता दिया कि कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीपर देन अदर यूनिवर्सिटीज। उस पे भी आपको वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं अप टू 70% आपको जो है वो स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। इनकी जो है वो डिफरेंट जो है वो आई थिंक
अगर आप लगाएं कॉमर्स से लेके मेडिकल तक, एवरी डिग्री दे आर ऑफरिंग। तो इसमें जो है इसमें जो आपका यहाँ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स। यहाँ पे चाइनीज भी हैं, यहाँ पे बुद्धिज्म भी है, और काफी जो है वो रेसेस भी हैं और रिलीजन्स डिफरेंट्स हैं। लेकिन आपको यहाँ पे फायदा ये है कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को कंसीडर करें, लाइक आप कनाडा जाएं या कहीं भी जाएं, आपको हो सकता है कहीं पे आपको हर्डल हो एज अ मुस्लिम के वो कहीं मस्जिद बंद है या कहीं पे लाउड स्पीकर अजान नहीं दे सकते हैं। ये चीजें जो है वो यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ये मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये जो है वो इस चीज को, हर चीज जो है वो उसको देखे जाते हैं, मुस्लिम्स को यहाँ पे जो है प्रोटाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बुद्धिज्म कंट्री भी है यहाँ पे रेसिज्म जो है वो रिलीजियन बेस पे बिल्कुल भी नहीं है। रिलीजियन बेस पे यहाँ पे रेसिज्म बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपका वो अगर क्रिश्चियन है तो मुस्लिम उसको उसके इवेंट्स पे सपोर्ट करता है। अगर आप मुस्लिम है, आपके ईद पे, आप पे आपको जो क्रिश्चियंस हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं आपको, मतलब के हॉलिडेज देते हैं, सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे नहीं है। जो आप लगा लें वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको सर्दी नहीं मिलती है कि आपको जो है, अगर आप जो है वजू करना चाह रहे हैं, आप जा रहे हैं वॉशरूम में, आपको ठंडा पानी नहीं मिल रहा और आप जो है वो फंस गए हैं कि आप करें क्या, वो नहीं है यहाँ पे। और जो है वो आप इजीली जो है वो यहाँ पे आई थिंक नॉर्मल टेम्परेचर 25 to 32 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है ऑल ओवर द ईयर। पूरा साल एक ही जो यहाँ पे जो है वो वेदर रहता है, जो कि 25 से 30 के दरमियान है। some of they have cold areas in here which I think वहां पे वेदर होगा I think 10 to 15 or sometimes they become like 5 degrees। so इस तरह के यहाँ पे भी एरियाज हैं। यहाँ पे मतलब कि ओपनली यहाँ पे बारिश जो है वो नॉर्मल है, यहाँ पे बारिश होती रहती है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है आई थिंक ऑलमोस्ट क्लाउडी रहता है, ऑल ओवर द क्लाउडी रहता है यहाँ पे। तो ये था सारा कुछ जो कि आपको मैंने स्कॉलरशिप से लेके यहाँ पे रहने का, यहाँ पे जो है वो जो है एटमॉस्फेयर इनका, इनके कल्चर, इनके रिलीजियंस, एवरीथिंग आई ऑलरेडी डिलीवर टू यू। इसमें आपकी जो है ये आप जैसे देख रहे होंगे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, इसमें जो बहुत सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया, these are the universities you can google it here। ये वर्ल्ड क्लास रैंकिंग में जो है वो इस टाइम जो है वो इंक्लूड हो चुकी हैं। और आई थिंक जिसमें आप ये एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी देखें, एपीयू जो है इसका बहुत ज्यादा नाम है यहाँ पे। और टेलर्स यूनिवर्सिटी, दिस इज द like well known international university in which you can easily migrate to any country। I think ये यूएसए में भी है, यूके में भी है, आई एम नॉट श्योर, बट टेलर्स यूनिवर्सिटी जो है वो 2-3 कंट्रीज में और भी है जहाँ पे आप इजीली जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो इट्स अ गुड ऑप्शन। अगर आपको नहीं मिलती, अगर आपका पाकिस्तान से एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है, यहाँ से जो है वो मलेशिया के थ्रू जो है वो काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ड्यूअल डिग्री देती हैं। यहाँ पे आपको मतलब कम पैसे में आपका यहाँ आना हो जाता है, यहाँ से फिर जो है वो आपका आगे ट्रांसफर जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। So if you want to have a quick look on these world class universities, you can have a look। जिसमें मेरी यूनिवर्सिटी महसा जो है वो बेसिकली यहाँ पे टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड होती है। और बाकी इसी तरह जो है मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जो है ये जो मल्टीमीडिया स्टडीज जो है ये यहाँ की सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी है। इनके कोर्सेज बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा कोर्सेज ऑफर करते हैं ये। So that's all from my side। if you have any question you can ask me। काली जी के क्वेश्चन है, रेज हैंड कर लें। जी मिस्टर हसनैन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम।
भाई एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया था, मैंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि इसके एडमिशन कब ओपन होते हैं मास्टर के लिए। मास्टर्स के बेसिकली इधर ना 3 सेशन होते हैं जो कि जी साल में 3 दफा ये ओपन करते हैं। फर्स्ट जो है वो जनवरी में ओपन होता है, सेकंड जो है ये आई थिंक अगस्त में ओपन होता है, और जो थर्ड है वो आई थिंक सितंबर के लास्ट में ओपन होता है। अभी जो है वो करंट जो है वो अगस्त वाला जो है वो ओपन है। बेहतर है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से जरूरी है? डॉक्यूमेंटेशन यू ऑल आपको कौन सी मास्टर्स के लिए चाहिए? जी जी मास्टर्स के लिए आपको आपकी मैट्रिक का जो है वो सर्टिफिकेट, इंटर सर्टिफिकेट एंड ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडिंग योर लाइक कोर्सेज। और अगर आपके पास डिग्री है तो वेल एंड गुड, इफ यू डोंट हैव डिग्री तो आपकी सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट जो है वो चाहिए, बट वो अटेस्टेड लाजमी होनी चाहिए। जो आपकी डिग्री है बैचलर्स वाली वो लाजमी अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, इफ यू आर गोइंग फॉर द मास्टर्स डिग्री, यू हैव टू टेक द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर व्हिच वन इज रिटन फ्रॉम योर previous college or previous university. If you are studied from bachelor's wherever you आपने जहां से भी बैचलर्स किया है वहां से एक जो है वो सिर्फ आपको वहां से लेटर बनवाना है कि मैंने जो है वो अपनी डिग्री जो है वो आप इंग्लिश कोर्सेज में ऑल आर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, सो इसका सिर्फ लेटर एक चाहिए होगा। दीज आर द थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर पासपोर्ट। ठीक है। उसके लिए मतलब एडमिशन के लिए हमें सुपरवाइजर को रीच करना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी को करेंगे? अगर आप इसमें होता है कोर्स वर्क होता है और थीसिस होता है। अगर थीसिस बेस्ड होता है तो उसमें जो है वो आपको दे देते हैं, आपको रिकमेंड कर देते हैं कि आपने जो है एक प्रोफेसर जो है वो आपको हायर कर देते हैं, वो आपको लिंक कर देते हैं। आपने सारा उनसे लिंक्ड रहना है। वो आपको जो है वो टाइमली जो है वो आपको सिर्फ टास्क देंगे जो आपने टास्क मतलब फिजिकली आई थिंक प्रैक्टिकली कंप्लीट करके उनको देने होंगे। ये दोनों चीजें जो है वो ऑफर कर देते हैं। मतलब प्रैक्टिकल वाला भी आप चाह रहे हैं या कोर्स वर्क चाह रहे हैं, वो दोनों जो है वो आपको ऑफर करते हैं। जो कोर्स वर्क है वो तो हमारा पाकिस्तान की तरह नॉर्मल होता है कि जाएं बुक्स पढ़ें और दीज आर द थिंग्स। और जो दूसरा है वो आपको इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल, आपको टोटली वो आपको जो है वो एंगेज करके रखते हैं कंपनी से, इंडस्ट्री से। मतलब व्हाटएवर यू आर डूइंग डिग्री, वो आपको लाइक इफ आई कंसीडर माई सेल्फ, अगर मैंने आईटी किया, मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हूँ, वो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनीज के साथ लिंक करके रखते हैं। वो मतलब कि आपको इन शॉर्ट अगर आप अपने ओपन वर्डिंग में ये फंसा के रखते हैं कि ये वहां जाके मतलब अपना सर जो है वो खपा के आए और लेके आए कुछ के ये मैं आज वर्क करके आऊं, ये मेरी चीज है, आप मुझे बताएं मैंने इसका क्या करना है। वो फिर जो है वो आपको गाइडेंस जो है वो स्टेप वाइज देते रहते हैं। जी भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी वेलकम। मिस्टर मोहम्मद हमाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई अस्सलाम। भाई आपने बताया कि यहाँ पे जो मलेशिया में यूनिवर्सिटीज हैं वो मैक्सिमम 70% तक स्कॉलरशिप देती हैं, वो भी जी आपके अच्छे ग्रेड की बुनियाद पे ना। तो अगर जी कोई जी स्टूडेंट होता है जिस तरह का 3.3 या 3.4 तक सीजीपीए उसका होता है और वो जी जी अप्लाई करे तो कितने चांसेस होते हैं? तो और नेक्स्ट बात ये है कि अगर 70% देते हैं तो वो किस तरह कवर करेगा लिविंग एक्सपेंस वगैरह सब कुछ पे? तो वो उसको खुद पे नहीं करना पड़ेगा? और आपने कहा कि वहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी भी ऐसी है कि वो जॉब नहीं देते इतनी, तो वो ये जी सारा जी। किस तरह सारा कवर करेगा? और वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। जो पहली चीज आपने पूछी, अगर आप मेरिट नहीं है तो स्कॉलरशिप चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन डिग्री, इट डिपेंड्स ऑन योर डिग्री। अगर आप मतलब कि आपका मेरिट और आप लाइक मेडिकल की फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में भी कंसीडर करें मेडिकल के लिए, वो जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कुछ हद तक जो है वो ये फिर भी लीवरेज दे देते हैं। इवन यू डोंट हैव मेरिट स्टिल दे वो आपको जो है वो सॉरी रिजेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको फिर भी स्कॉलरशिप देते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो मतलब आपको अगर आप फर्ज करें कि अगर आपकी एमबीए के लिए जा रहे हैं, अगर आपका मैं ओपनली अगर बताऊं, अभी अभी तक जितने स्टूडेंट्स मेरे थ्रू आए हैं बेसिकली ज्यादातर एमबीए के लिए आए हैं। एमबीए में होता यह है कि एमबीए में उनको 65 से 70% स्कॉलरशिप तक मिली है। मेरे अभी अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट थे जो कि पाकिस्तान से अभी आए हैं, आई थिंक यूओएल से
वो पढ़े हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से वो कंप्लीटेड थी उनकी डिग्री, तो उन्होंने यहाँ पे एमपीए में एडमिशन लिया। उनका आई थिंक जो यहाँ पे टोटल उनका परसेंटेज बन रही थी, इट वाज अराउंड 63% उनके टोटल मार्क्स थे ग्रेजुएशन में, बट स्टिल ही गॉट स्कॉलरशिप फॉर आई थिंक उनकी 65% हुई है। और जो लिविंग एक्सपेंसेस है जो अभी यहाँ पे एज आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना कोई आपके पास स्किल्स हैं तो यहाँ आपके बैंक अकाउंट्स बनते हैं। लाइक जैसे कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं पाकिस्तान बैठ के, आपको काफी चीजें हैं जो यहाँ वहां पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट आपका जो है वो स्टूडेंट वीजा पे ओपन हो जाता है, इन विच यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग वर्क, यू डोंट हैव एनी टैक्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स, यू हैव स्किल्स, यू कैन अर्न एज मच यू वांट, यू डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम योर गवर्नमेंट और फ्रॉम बैंक दैट इससे ज्यादा आपने एक्सीड किया लिमिट तो आप पे टैक्स डालेंगे, ये वो आपको नहीं है, बिल्कुल फ्री है, आपको अर्न करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको यहाँ पे मतलब कि एक्सपेंसेस, पहली बात तो ये है कि वो पहला यहाँ पे सिर्फ आता ही वो है जो इसको मतलब कि जो है वो अफोर्ड कर सकता है। अगर इन केस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और अब यहाँ आना भी चाह रहे हैं, इनकी फीस बाकी यूनिवर्सिटीज से बाकी कंट्रीज से बहुत ज्यादा कम है। अगर आपने इंटरनेशनल लेवल की डिग्री लेनी है वो आपको मिलती है, वो भी बहुत कम प्राइसेस में, बहुत ज्यादा। अगर आप स्कॉलरशिप से कैलकुलेट करें कि ये आपको आई थिंक पाकिस्तान की नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के बराबर ही इनकी फीस आ जाती है। मैंने कैलकुलेशन की थी लास्ट टाइम, आई थिंक इनकी जो फीस थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी उसके आई थिंक उससे तकरीबन जो है वो मैच हो रही थी। और दूसरी बात ये कि ये लक है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लकी हैं then you got a job, then you can do a job। अगर आप पार्ट टाइम है तो यहाँ से इमिग्रेशन से लेटर बनेगा, then you are legal and you can do job। बट वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि पार्ट टाइम स्टडीज ऑफर कर रही हैं। ये दे बेसिकली आर लाइक attracting to full time students, international students। so अगर आप लकी हैं फिर आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे। लाइक जैसे कह लें कि काफी ज्यादा मेरे दोस्त हैं वो जो कि जॉब कर रहे हैं। लाइक उनको ऑफिशियल जॉब तो नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली ऑफिशियल जॉब तो मैं अगर पाकिस्तान को कंसीडर करूं, आपकी डिग्री अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है, इफ यू आर एन IT गाय, आपको आई थिंक फर्स्ट मंथ ही जो है वो सॉफ्टवेयर हाउस में मतलब प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलेगी। तो आपको कहेंगे भाई हमारे से 20,000 30,000 ले लो, हमारा काम कंप्लीट करो, ये करो वो करो। वो तो पाकिस्तान में भी एक नॉर्मल चीज है, बट इफ यू आर गोइंग फॉर ऑफिशियल योर लेवल जॉब, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, फिर आपको पाकिस्तान में भी मिलती है। यहाँ पे भी समहाउ ऐसे ही है कि लाइक जैसे आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जाके लोग स्टोर्स पे जॉब करते हैं, ओपनली अगर मैं कहूँ तो स्टोर्स पे जॉब करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने फीस निकालनी होती है। वो फी जो है वो भी हाई होती है, वो ज्यादा होती है रेदर देन मलेशियन यूनिवर्सिटी, वो ज्यादा होती है उनकी फीस। वो फिर भी बेचारों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो पीछे से अगर डॉलर एक्सचेंज करवाएंगे, पाकिस्तानी रुपीस से डॉलर एक्सचेंज करवाएंगे, वो तो सीधी बात है भाई पीछे पसली टूट जाएगी। वो डॉलर्स में, कैनेडियन डॉलर्स या यूएसए डॉलर में अगर कन्वर्ट करेंगे पीछे से फीस, वो तो ऑब्वियसली एक मतलब मोर देन मीडियोकर भी एक पर्सन होगा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो यूएस डॉलर में भी कन्वर्ट करना पाकिस्तानी रुपीस में फीस देने के लिए। अगर आप पीछे से यहाँ पे अगर आते हैं, पीछे से अगर आपको कन्वर्ट करके यहाँ मंगवाने भी पड़ते हैं, यहाँ का रेट जो है वो डॉलर की तरह 250 मतलब 200-250 नहीं है, 60 रुपीज रेट है। वो आप समहाउ जो है वो आप कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में भी जो आपने फीस देनी है, दे आर इक्विवेलेंट, लाइक आफ्टर स्कॉलरशिप दे आर इक्विवेलेंट। अगर आप जो है वो जॉब करना चाह रहे हैं, यू आर लकी इफ यू हैव एनी रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस पे जॉब मिल जाती है। अगर आपका कोई पाकिस्तानी जो है वो आपके जानने वाले हैं, यहाँ पे उनका बिजनेस है, ये लोग जॉब पे रख लेते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई रूल्स जो है वो नहीं देखते कि गवर्नमेंट कह रही है नहीं देनी जॉब, वो लोग ये नहीं देखते हैं, वो रख लेते हैं। पाकिस्तानी, इंडियंस और अरब जो है, अरबी जो है वो यहाँ पे अरब बहुत ज्यादा है, अरब जो है वो आपको जो है वो दे देती हैं वो जॉब, मतलब और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कॉल सेंटर्स में यहाँ पे जॉब मिल जाती है इजीली। जो मैंने एग्जामिन किया ना, कॉल सेंटर्स में जॉब मिल जाती है, क्योंकि वो ओवरनाइट होती है। आपके स्टूडेंट जो है वो, आपका स्टडी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। बेसिकली वो जॉब इसीलिए आपको वो नहीं गवर्नमेंट करने देती है, वो कहती है ये पढ़ने आए हैं, ये अपनी स्टडी भी डिस्टर्ब करेंगे आप इनकी जॉब में लग के। तो इसीलिए ओवरनाइट वाला जो है आई थिंक वो कॉल सेंटर में जॉब आई थिंक थोड़ा मतलब
बाकियों से इजी थोड़ा मिल जाती है, लेकिन वो भी मुश्किल है, वो भी आप लगा लेंगे 50% चांस ही है उसका भी। लेकिन एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, इसीलिए जो अभी तक मेरे जो स्टूडेंट आए हैं वो वहाँ पीछे से मतलब कि बहुत ज्यादा जो है वो एलीट क्लास नहीं है, वो मीडियोकर है, लेकिन वो फिर भी वो जो है वो अभी एक्सपेंसेस पीछे से मंगवा के कवर अप कर रहा है, क्योंकि आई थिंक उनका, अगर मैं टोटली आपको उनका एक्सपेंस बताऊं, वो आई थिंक एक एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में 2 रूम है, जिसका आई थिंक 400 जो है वो ईच आया हुआ है, 400 ईच देना पड़ता है उनका सेपरेट, वो जो है वो बेडरूम है। 400 ringgit, इफ यू कैन कैलकुलेट टू पाकिस्तानी, यू कैन सी दैट हाउ मच इज दैट, वो आपको कवर अप हो गया। यहाँ पे खाना पीना जो है वो बहुत बहुत ही चीपर है, बहुत ही ज्यादा चीपर है, जो कि अगर मैं अकेला अपना एक्सपेंस लगाऊं तो आई थिंक अगर आपके पास 500 to 600 ringgit है, तो आपकी ग्रोसरी इंक्लूडिंग योर ऑल मंथ फूड, आपका अराउंड 500 to 600 ringgit जो है वो आपका कवर अप हो जाता है। 400 जो है आपका लिविंग एक्सपेंसेस आ गया, 400 to 500 वो आपका फूड और ऑल जो है वो अदर अलाउंसेस हो गए। बाकी जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोग होते हैं मेरे तरह, वो फिरने के शौकीन हो, कभी आज वहाँ वो होता जाता है। लेकिन अगर आप इसको मतलब कि मैं आपको क्विकली जो है वो बताऊं, तो वो मैनेज करना इजी है। अगर आप पाकिस्तान से नहीं भी मंगवा सकते, तो आप लकी हैं कि अगर आप डे में हर दिन जो है वो निकल रहे हैं जॉब के लिए, आई थिंक आपको मिल जाएगी, अगर आप वाकई एफर्ट कर रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए। क्योंकि आपको ऑब्वियसली अगर यहाँ पे तकरीबन कोई 10 to 12% फॉरेनर्स है ना, तो 10-12% फॉरेनर्स डेली भी आप अगर जॉब ढूंढने निकले, आई थिंक आपको एक महीने में, मेरा जहां तक ख्याल है कि आपको एक महीने में एक जॉब तो कोई ना कोई ऑफर दे, सर्च अ जॉब, देन यू कैन गेट अ जॉब। बट वो भी लीगलाइज नहीं है, मतलब वो फिर वो कंपनी का एडिक होता है, कंपनी कहती है आप करें जॉब, आपका एडिक नहीं है, वो हम जो है वो हैंडल करेंगे जिस तरह भी हमने हैंडल करना है। वो आपको बैक एंड पे रखते हैं। फिर फ्रंट एंड की जो जॉब है वो डिफिकल्ट होती है, कि फ्रंट एंड पे जो है वो आपको कोई भी आके पूछ सकता है कि आप जी कौन से वीजे पे हैं, वो इसीलिए बैक एंड्स की जो है वो आपको जॉब दे देते होते हैं। तो इसीलिए जो है वो एफर्ट्स करने पे है, एफर्ट्स तो आप जो करेंगे वो तो ऑब्वियसली वो नजर आते हैं। अगर आप वो तो मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 100% है कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, अल्लाह ताला ने किसी का रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि भाई 100% यहाँ पे नहीं मिलनी। अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, अगर किसी की यहाँ पे बेशक वो इलीगल है, बेशक वो इलीगल है, वो जॉब लेके रहेगा, मैं कोई नहीं होता कहने वाला कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं इन केस अगर मैं देखूं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे अभी थोड़ा सा हमारी कंपनी, मेरे बिजनेस, मेरे के बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल था, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहे हैं, वो ड्यू टू पैंडेमिक, बिकॉज ड्यू टू कोविड। मुझे जरूरत थी कि मैं जॉब सर्च करूं, मैं निकला था, मैं था और मेरे एक और फ्रेंड थे, हमने आई थिंक टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 2 से 3 दिन प्रॉपर जो है वो निकल के सारा दिन जॉब ढूंढी है, एंड आई गॉट अ वन जॉब which was in mall, and that was a kiosk. You have to sell their items. There was, I think, mobile accessories shop, not shop, kiosk. You have to sell the mobile products and you have to apply the protectors. I got a job. So after the time being, my father came and he said, you just focus on your study. So then I didn't continue it. But मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं 3 दिन निकला था जॉब ढूंढने के लिए, तो मुझे 3 दिन में आई थिंक मैं कोई इतना स्किल पर्सन नहीं हूँ, मैं 3 दिन में आई थिंक कोई कम अज कम भी ना, आई थिंक मोर देन 50 शॉप्स मैंने विजिट की थी, जहाँ पे मतलब ऐसे नहीं कि सारे जा रहा हूँ, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी का पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे इजीली जो है वो आपको मॉल्स में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं भी जाएं,
वो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का पोस्टर बाहर ही नजर आ जाता है। तो वो मैंने आई थिंक 50 जगह पे अप्लाई किया, 50 जगह के बाद मुझे एक मिल गया था 3 दिन में। तो इसीलिए जो है वो आपकी लक पे डिपेंड करता है कि मैं कोई भी नहीं होता कहने वाला कि आपको नहीं मिलेगी, ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने लिख दी हुई है, तो हम कोई भी नहीं होते किसी को रोकने वाले, या मलेशियन गवर्नमेंट या मलेशियन पीपल या वो कंपनी कोई भी नहीं होता रोकने वाली कि नहीं मिलेगी आपको। ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दिया आपके साथ कि मुझे 3 दिन में एक मिल गई हुई थी। एनीथिंग एल्स समाद भाई? आई थिंक सबके क्वेश्चंस के आंसर्स आपने कर दिए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली रेज हैंड, अदरवाइज फिर सेशन कंक्लूड कर देंगे। एनवायरनमेंट मेरे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो भी सेशन कंक्लूड कर दें। जी जी सर, इजाजत हो। बहुत शुक्रिया हमजा भाई आपका भी और आपकी टीम का। तो ताकि थ्रू शायद मतलब किसी का फ्यूचर बिल्ड हो जाए, तो आपकी एफर्ट्स भी अल्लाह ताला आपको जो है वो ऐसे ही एफर्ट्स करते रहे। अल्लाह ताला जो है वो आपको शायद इसी बेस पे जो है वो कामयाब करेंगे। लाइक आप ऐसे ही लोगों के लिए सोच रहे हैं, अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए सोचेंगे इंशाल्लाह एक ना एक दिन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मिस सदफ प्लीज कंक्लूड द सेशन। Thank you so much. Assalamu alaikum to everyone. Sorry for disruption. Sir, I would like to thank for taking out the time from your busy routine for this webinar. Surely it will be very helpful for all the students from Pakistan and different countries. So we end up the session with a beautiful quotation. The only limits for tomorrow are the doubts we have today.